Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to AIMS Virtual Institute of Pakistan. I am Dr. Usman Shahid, your lecturer for subject of hospital pharmacy. In today's lecture, we will discuss about community pharmacy and public health. آج کے اس لیکچر میں ہم کمیونٹی فارمیسی اور پبلک ہیلتھ کے بارے میں پڑھیں گے. ہم دیکھیں گے کس طرح سے ایک فارماسسٹ اپنا رول پلے کرتا ہے ایز اے کمیونٹی فارماسسٹ، اور کمیونٹی فارمیسی کی کون سی فیلڈ ہے، وہ کس طرح سے اپنا روزمرہ کام پرفارم کر رہی ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں. دین وی ول ڈسکس اباؤٹ پبلک ہیلتھ، اور ہم پھر دیکھیں گے کہ کس طرح سے پبلک ہیلتھ ایک کمیونٹی کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر یا ایک پاپولیشن کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ڈیزیزز کنٹرول کرنے کے لیے اور ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے. We will start our lecture by community pharmacy. If we discuss community pharmacy, تو community pharmacy ایک ایسا local area ہے جو اس local area اس سوسائٹی کی تمام پبلک کے تھرو ایزیلی accessible ہے، جس کو اس ایریا کی تمام پبلک بآسانی اسیس کر سکتی ہے، بآسانی اپروچ کر سکتی ہے. ایک کمیونٹی فارمیسی ایک ڈرگ سٹور کی طرح کام کرتا ہے جس کو ایک سرٹیفائڈ فارماسسٹ رن کرتا ہے. ایک سرٹیفائڈ فارماسسٹ اپنے تمام تر عملے یعنی کہ فارمیسی ٹیکنیشینز کے ساتھ مل کے اس کمیونٹی فارمیسی کے اندر بیسٹ ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈ کرتا ہے. اس فارماسسٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے تمام فارمیسی ٹیکنیشینز کو، اپنے تمام سٹاف کو سپروائز کرے، پیشنٹ کو ان کے نیڈ کے مطابق میڈیسنز اور ادویات فراہم کرے، ڈاکٹر کے نسخے یعنی کہ پرسکرپشن کے پر موجود جتنے بھی ادویات ہیں ان کی فراہمی کو اویلیبل بنائے، ڈرگ سٹوریج کنڈیشنز یعنی کہ اس فارمیسی کے اندر جتنے بھی ڈرگز اور میڈیسنز کو سٹور کیا جا رہا ہے ان کی کنڈیشنز دیکھے، اور اپنی نالج اور سکلز استعمال کر کے اس ایریا میں آنے والی تمام پاپولیشن کو، تمام لوگوں کو، تمام تر پیشنٹس کو بیسٹ میڈیکل سروس اور بیسٹ ہیلتھ سروس پرووائڈ کرے. اب ہم دیکھیں گے واٹ از دا اسکوپ آف کمیونٹی فارمیسی. اگر اسکوپ کی بات کی جائے تو کمیونٹی فارمیسی کو ایک فارماسسٹ رن کرتا ہے. بیسیکلی فارماسسٹ دو قسم کی کمیونٹی فارمیسیز رن کر سکتا ہے، ایک اس کی اپنی پرائیویٹ کمیونٹی فارمیسی اور ایک چین کمیونٹی فارمیسی جیسے کہ کلینکس یا بشیر سنس وغیرہ. اگر ہم سکوپ کی بات کریں تو ایک فارماسسٹ، ایک لائسنسڈ فارماسسٹ کی یہ تمام تر ڈیوٹیز ہیں کہ وہ اس کمیونٹی فارمیسی کے اندر رہ کے اس چیز کو انشور کرے، اس چیز کو پاسبل بنائے کہ وہاں پہ تمام آنے والے پیشنٹس، تمام تر پاپولیشن کو بیسٹ ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے. اگر ہم ڈیوٹیز آف فارماسسٹ کی بات کریں تو ایک فارماسسٹ، ایک کمیونٹی فارماسسٹ جو اس کمیونٹی فارمیسی میں کام کر رہا ہے وہ یہ تمام ڈیوٹیز پرفارم کرتا ہے. فرسٹ ڈیوٹی وڈ بی پروسیسنگ آف پرسکرپشن. ایک فارماسسٹ کی سب سے پہلی ڈیوٹی ہے پروسیسنگ آف پرسکرپشن، کہ وہ کس طرح سے ڈاکٹر کے نسخے کو پروسیس کرتا ہے. اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس پیشنٹ کی پرسکرپشن کو آسانی سے اور آرام سے پڑھے اور اس میں موجود تمام تر ادویات پیشنٹ کو فراہم کرے، اور اس چیز کو مد نظر رکھے کہ کیا وہ ادویات آپس میں انٹریکٹ تو نہیں کریں گی یا وہ پیشنٹ کی سیفٹی کے لیے بیسٹ ہیں یا نہیں. نیکسٹ وڈ بی کیئر آف پیشنٹ. ایک فارماسسٹ اس فارمیسی کے اندر رہ کے پیشنٹ کی کیئر کو انشور کرتا ہے. یہ اس طرح سے انشور کی جاتی ہے کہ وہ آنے والے پیشنٹ کو بیسٹ میڈیسن پرووائڈ کرتا ہے اور اس کو اس ساری انفارمیشن سے آگاہ کرتا ہے جس کا جاننا اس کا حق ہے، تاکہ جب وہ میڈیسن کھائے، جب وہ میڈیسن ایڈمنسٹر کرے، اس کو یوز کرے، اس کو بیسٹ اور افیکٹو ریزلٹس ملے. اس طرح سے پیشنٹ کی ہیلتھ امپروو کی جا سکتی ہے. اف وی ڈسکس ایکسٹمپرینیس پریپریشن، تو ایکسٹمپرینیس پریپریشن ایک ایسی پریپریشن ہے جو اس پیشنٹ کی انڈیویجول نیڈ کے مطابق ہوگی، جو اس پیشنٹ کی نیڈ کے مطابق اسی جگہ پہ پریپیئر کی جاتی ہے، اور اس کو پریپیئر ایک فارماسسٹ کرتا ہے.
मेंटेनेंस ऑफ नारकोटिक रजिस्टर्स, नारकोटिक रजिस्टर्स की मेंटेनेंस और उसको अपडेट रखना एक फार्मासिस्ट की सबसे क्रूशियल और सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस है। एक फार्मासिस्ट का फ़र्ज़ है कि वो उस कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर वहाँ पे मौजूद होने वाली नशा आवर अद्वियात का एक रिकॉर्ड मेंटेन करे, और उस रिकॉर्ड के लिए नारकोटिक रजिस्टर बनाया जाता है जो एट द एंड ऑफ मंथ हेल्थ सपोर्टर्स को और हेल्थ मिनिस्ट्री को दिखाया जाता है, ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके, इस चीज़ को यकीनी बनाया जा सके कि वहाँ पे तमाम तर मौजूद नशा आवर अद्वियात का मिसयूज़ नहीं हो रहा। The next service would be maintenance of drug storage. मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टोरेज में एक फार्मासिस्ट का ये रोल है कि वो उस प्रीमिसिस के अंदर काम करते हुए, उस फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर या उस कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर काम करते हुए इस चीज़ को इंश्योर करे कि वहाँ पे जितनी भी अद्वियात को स्टोर किया जा रहा है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक और SOPs के मुताबिक स्टोर किया जा रहा है, ताकि ड्यूरिंग स्टोरेज उनमें कोई खराबी या किसी किस्म की इनकम्पैटिबिलिटी डेवलप ना हो सके, ताकि उनकी एफिकेसी को मेंटेन किया जा सके। लास्ट इज हेल्थ प्रमोशन। एक फार्मासिस्ट की ये ड्यूटी है कि वो अपने तमाम तर अमले के साथ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वहाँ पे काम करके और उनको बेस्ट मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करके हेल्थ केयर प्रमोशन करे, यानी कि सेहत को फ़रोग दे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिक हेल्थ। हम देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ किसको कहते हैं और एक फार्मासिस्ट किस तरह से पब्लिक हेल्थ में अपना रोल प्ले करता है। अगर बात की जाए पब्लिक हेल्थ की, तो पब्लिक हेल्थ एक पॉपुलेशन, एक इलाके, यानी कि पब्लिक के अंदर हेल्थ को प्रोमोट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि उस पेशेंट्स के अंदर डिज़ीज़ की रेशियो कम करने के लिए, वबाई अमराज को कम करने के लिए और सेहत को फ़रोग देने को ही हम पब्लिक हेल्थ कहते हैं। एक फार्मासिस्ट किस तरह से पब्लिक हेल्थ में काम कर सकता है? एक फार्मासिस्ट अपनी तमाम तर स्किल्स के साथ, अपने नॉलेज के साथ और उन रिसोर्सेज के साथ जो उसको दिए गए हैं, उसको इस्तेमाल करके इस वाहिद एम और इस वाहिद मकसद पे काम करेगा कि उस पॉपुलेशन की हेल्थ नीड्स को मुकम्मल किया जा सके, उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, ताकि वहाँ पे सेहत को फ़रोग दिया जा सके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एपिडेमियोलॉजी कि व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी। अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो एक सोसाइटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर किसी वबा का फैलना, उस वबा के असरात, उस वबा की वजूहात, उस वबा के क्लिनिकल साइंस यानी कि उसकी अलामात और उस वबा से होने वाली अमवात का अंदाज़ा लगाना, इस चीज़ को हम पब्लिक हेल्थ कहते हैं। इफ़ वी हैव टू डिफाइन पब्लिक हेल्थ, अगर हम इसको डिफाइन करें तो द स्टडी ऑफ द नेचर, कॉज, कंट्रोल एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी बेसिकली एक पॉपुलेशन के अंदर रहकर की जाती है, एक ख़ास एरिया के अंदर, एक ख़ास मकाम के अंदर रहकर इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस पॉपुलेशन के अंदर या उस सोसाइटी के अंदर या उस कम्युनिटी के अंदर एक डिज़ीज़ के फैलाव का क्या क्या असरात हैं और उनसे कितनी मौत वाक़या हो रही है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेजर पर्पसेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी कि एपिडेमियोलॉजी क्यों की जाती है, इसके पर्पस क्या हैं। फर्स्ट वन वुड बी टू इन्वेस्टिगेट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक कम्युनिटी के अंदर, एक माशरे के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि सेहत से रिलेटेड मसले मसाइल को जानने के लिए एपिडेमियोलॉजी पर काम किया जाता है। नेक्स्ट वुड बी टू आइडेंटिफाई कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। उस एरिया में मौजूद बीमारी के कॉजेस, उनकी वजूहात और उससे पैदा होने वाले रिस्क को जाना जाता है। Then would be describing the natural history of disease. एपिडेमियोलॉजी का एक पर्पज़ ये भी है, एक मकसद ये भी है कि वो उस सोसाइटी के अंदर पैदा होने वाली बीमारी की हिस्ट्री को बताता है, उसकी तारीख के बारे में स्टडी करता है कि किस तरह से बीमारी आई और किस तरह से एक सोसाइटी में फैली।
Establishing of the history of a disease, describing the clinical picture of disease. एपिडेमियोलॉजी से एक फार्मासिस्ट अपनी स्किल्स के थ्रू, अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू इस चीज़ पे काम करते हैं कि एक बीमारी किस तरह से पेशेंट के अंदर रूनुमा होकर कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर करती है। उन अलामात की इंफॉर्मेशन को हम बोलेंगे डिस्क्राइबिंग द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ डिजीज़, जिससे हम एक पेशेंट की क्लिनिकल पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आया कि एक ऐसा मरीज़ जिसको वो बीमारी है वो हमें क्लिनिकली किस तरह से नज़र आएगा या उसके अंदर कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होंगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस वुड बी आइडेंटिफाइंग ऑफ सिंड्रोम्स एंड प्रीकर्सर्स। एपिडेमियोलॉजी के अंदर काम करते हुए हम सिंड्रोम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हम एक कॉजुएटिव एजेंट से, एक बैक्टीरिया से, एक वायरस से या कोई भी ऐसा जानवर या कोई भी ऐसा जिंदा अशिया जो एक बीमारी को फैलाता है, उससे पैदा होने वाले और सिंड्रोम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसके बारे में तशखीस करना, ये भी एक पर्पस है एपिडेमियोलॉजी का। द लास्ट पर्पस वुड बी टू प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन। लास्ट पर्पस उसका ये है कि वो उस सोसाइटी में रहकर, उस एक एरिया में रहकर इस चीज़ पे काम करता है ताकि वहाँ पे हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म गिवन किया जा सके ताकि वहाँ पे बेस्ट मेडिकल केयर प्रोवाइड की जा सके और सेहत को फ़रोग दिया जा सके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिवेंटिव हेल्थ। जैसे कि हमने एपिडेमियोलॉजी की बात की जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम एक बीमारी की वजूहात को पढ़ते हैं, उसके फैलाव को पढ़ते हैं, उससे होने वाली अमवात को पढ़ते हैं, तो इस चीज़ से, उस बीमारी से बचने के लिए जिस पे काम जारी है, उससे बचने के लिए जितने भी इक़दामात हैं उन सब को हम प्रिवेंटिव हेल्थ कहते हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं। बेसिकली प्रिवेंटिव हेल्थ में हम उस बीमारी के फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इस चीज़ की तशख़ीस करते हैं कि किस तरह से वो बीमारी फैली जा सकती है और अपने पेशेंट्स को और अपने माशरे को गाइड करते हैं, उनको ये तालीम फराहम करते हैं कि वो किस तरह से उस बीमारी से बच सकते हैं या किस तरह से एक ख़ास बीमारी से बचने के लिए एक कम्युनिटी या एक सोसाइटी में कौन कौन से इक़दामात लिए जा सकते हैं। इसमें EPI और CDC यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो कि हिफाजती टीके लगाने का प्रोग्राम है, उसको फ़रोग दिया जाता है, और CDC दैट इज़ सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल, एक ऐसा इदारा जो बीमारी कंट्रोल करने में काम कर रहा है, उन सब की तालीम और उन सब के इक़दामात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ के थ्रू ही आज हम लोगों ने काफ़ी जानलेवा बीमारी से छुटकारा हासिल कर लिया है, जिसमें पोलियो, डिप्थीरिया, येलो फीवर और स्मॉल पॉक्स जैसी खतरनाक बीमारियां शामिल हैं। आज के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू और प्रिवेंटिव हेल्थ के थ्रू हमने इस चीज़ को इंश्योर बनाया है कि हमने किस तरह से अपनी सोसाइटी के अंदर हेल्थ प्रमोशन करनी है, हमने किस तरह से सेहत को फ़रोग देना है। इट वॉज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से एक कम्युनिटी फार्मेसी अपना रोल प्ले कर रही है, प्रिवेंटिव हेल्थ किसको कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी किसका नाम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ किस चीज़ को कहते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट अदर लेक्चर्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। इसी के साथ थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।